male, androgen deficiency in aging male, मतलब जैसे जैसे एज होते जाता है एंड्रोजन का कमी होते जाता है, मतलब टेस्टिस बराबर से एंड्रोजन्स नहीं बना पाता, टेस्टोस्टेरोन नहीं बना पाता, तो ऐसे डेफिशिएंसी, ये सब डिसऑर्डर्स हैं। हाँ, ऐसे डिसऑर्डर्स को हम एडम बोलते हैं इन केस ऑफ मेल। दिस कैन ऑल्सो, एडम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल मेनोपॉज, मेल मेनोपॉज। गॉट इट? चलो, now let us begin with the female part. So female reproductive system में we know that ovary के बारे में what we have seen, the ovary is the one which produces the female gamete as well as it produces the hormones. Which are the two hormones? They are the estrogen and the progesterone. So ovary produces the gamete as well as the steroid hormones. Yes, टेस्टोस्टेरोन बोलो, एस्ट्रोजन बोलो, ये सब स्टीरॉइड हार्मोन्स है, मींस फैट बेस्ड हार्मोन्स हैं. Again, ovaries are attached to the abdominal wall by the ligament called as a mesovarium. ठीक है, mesovarium. ओवरी कैसा दिखता है? सॉलिड है, उसका जो आउटर रीजन है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर के रीजन को मेड्यूला बोलते हैं. मेड्यूला के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. ठीक है, एंड स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे स्पिंडल शेप के फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट हैं. ठीक है, नेक्स्ट, पुअरली dense connective tissue that is called as the tunica albuginea covers the cortex, जिसके वजह से it gives a whitish color to the ovary. ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर the next layer is germinal epithelium which is made up of the squamous or the cuboidal epithelium. ठीक है, squamous और the cuboidal epithelium. ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में देखते हैं. इसके पहले आकांक्षा was requesting me to teach this thing. Just a second beta, I will share the textbook with you. Huh? Okay, Open your textbook, all of you. It's opening beta. मैं आपको TS of ये बताती हूँ. What is the page number of textbook? Can anybody tell me? 22. अच्छा, yes, this particular part Akansha you were having doubt ना बेटा? मैम टेक्स्ट बुक नहीं दिख रहा है, वो अपने वो फोल्डर ही दिख रहा है. हाँ क्या, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड. अभी दिख रहा है? मैम अभी दिख रहा है. हाँ, यही वाला पेज है ना बेटा? स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी. हाँ, ओके. अच्छा, structure and development you were asking me. I thought you were asking me TS of ovary. इसको ओवरी पूरा ही पढ़ा दो ना मैम, ये बहुत डिटेल में दिया है स्टेट बोर्ड में. Okay, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, I got it. See, ये सब चीजें तो क्लियर है, उसका शेप, साइज एंड ऑल. ठीक है, हाँ. एक बार जस्ट अ सेकंड बेटा, आई एम कमिंग इन 2 minutes. आप एक बार ये रीड करो, आई एम कमिंग इन 2 minutes.
Okay, so it is present in the pelvis region near the kidney. It is held by the ligaments. Okay, it has been the largest of this is the broad ligament folded by a fold of peritoneum, means covering. ठीक है, ये सब तो general points हैं. 5 hormones are being secreted. Again, this is very important point. Please mark it in your textbook. 5 hormones are produced by the ovary. They are the estrogen, progesterone, relaxin, activin, and inhibin. ठीक है, please underline this and put it in the box. Next, you were asking me about the structure and development of the ovary. ठीक है, now ovary के बारे में during the lectures also I've told you what this paragraph is telling you is about female के अंदर. ठीक है, ये मैं आपको टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन बाद में समझाती हूँ. लेट मी एक्सप्लेन यू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जो प्रोसेस ऑफ oogenesis होता है, ठीक है, oogenesis का मतलब क्या होता है? एग फॉर्मेशन. तो इट बिगिंस बिफोर द बर्थ ऑफ अ फीमेल बेबी. ठीक है, जब भी फीमेल गर्ल चाइल्ड जो है वो मदर के वूम में होती है, हाँ, तभी से इसका oogenesis का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ओवरी कंटेन्स अबाउट 2 million और मोर oogonia. ठीक है, ओवरी के अंदर 2 million से भी ज्यादा oogoनियाज होते हैं. oogonia का मतलब क्या होता है बेटा? immature eggs. But at the time of this thing ना, birth ना, 1 million जो primordial follicles जो है सिर्फ प्रेजेंट होते हैं. आर यू गेटिंग? ओवरी के अंदर जो बेबी मदर के वूम में है, उसके ओवरी के अंदर ऑलरेडी 2 million ऑफ oogoनियाज होते हैं. बट जब ये बेबी गर्ल का बर्थ होता है, ठीक है, वो टाइम पे 1 million ही रह जाते हैं. मतलब 2 million में से 1 ही million रह गया. अभी इतना क्लियर है सबको? अब ये जब बर्थ हुआ, अब उसके पास सिर्फ 1 million प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है. अब ये जब बच्ची ग्रो होगी और जब वो प्यूबर्टी के एज में आएगी, ठीक है, अब ये 1 million में से भी धीरे धीरे रिड्यूस होके 40,000 तक आ जाता है. इतना सबको समझ में आया मेरी बात? ठीक है, यस मैम. हाँ, 2 million पहले था, बर्थ के टाइम पे 1 million हो गया, और जब ये बच्ची प्यूबर्टी तक पहुंची तो ये 1 million से रिड्यूस हो गया 40,000 तक आ गया. ठीक है, बाकी के सब डीजेनरेट हो जाते हैं. अब ये जो 40,000 है, यस, अब ये जो 40,000 है, इसी में से हर महीने जब ये बच्ची को मेनार्क स्टार्ट होगा, मेनार्क मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा. मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का मतलब क्या है? कि अब एग जो है, जो प्रीमोर्डियल एग्स है, दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग they have matured egg, means secondary follicles बन गए. Primordial follicles have developed into the secondary oocytes. Got it all of you? So out of this 40,000, one egg will be developed every month. 40,000 में से हर महीने एक एग जो है वो मैच्योर होगा. ठीक है, so every menstrual cycle में एक ग्रेफियन फॉलिकल, the best word I can use over here is a ग्रेफियन फॉलिकल. ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 40,000 जो एग्स है या फिर जो oogoनियाज है, ठीक है, इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल one ग्रेफियन फॉलिकल विल रीच टू द मैच्योरिटी. ठीक है, और अगेन जो बाकी के हैं वो क्या हो जाएंगे? इट विल बिकम डीजेनरेटेड. तो जो डीजेनरेटेड है, जो बहुत लार्ज स्केल पे जो डिस्ट्रक्टेड होते हैं, उसी को हम एस्ट्रीसिया बोलते हैं, या फिर एस्ट्रीफाइड भी बोल सकते हो आप. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आओ. लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स ड्यूरिंग ग्रोथ इज कॉल्ड एज एट्रेसिया. द प्रोसेस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एट्रिफिकेशन या फिर एट्रीफाइड. आप ऐसे भी बोल सकते हो, द रिमेनिंग एग्स आर एट्रीफाइड, या फिर दे अंडरगो एट्रेसिया. गॉट इट? ठीक है, अब हम क्या समझेंगे कि मेनार्क, लेट अस से दैट टेंटेटिव एज. अभी देखो, कोई गर्ल्स को 11 years में आता है, किसी लड़कियों को 15 years में आता है मेनार्क. ठीक है, मेनार्क मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्क. ठीक है, तो लेट अस टेक अ
मिडिल फिगर, सो लेट अस टेक 13 इयर्स में एक बच्ची है जिसको 13 इयर्स में मेनार्क स्टार्ट होता है, ठीक है। व्हेन शी रीचेस एट द एज ऑफ 45 to 55 मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, मतलब कि एग डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम ये रिप्रोडक्टिव स्पैन पकड़ेंगे, रिप्रोडक्टिव स्पैन पकड़ेंगे तो हमें कितने इयर्स का रिप्रोडक्टिव स्पैन मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली 32 इयर्स का मिलेगा। हाँ, व्हाट वी हैव डन, वी हैव द पीरियड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क एंड मेनोपॉज का जो पीरियड है, इन दोनों के बीच का जो पीरियड है, तो दैट पीरियड वी हैव गॉट अप्रोक्सीमेटली लेट अस से 32 इयर्स। वी नो दैट हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज का साइकिल होता है, करेक्ट है। तो 28 डेज का साइकिल है, मतलब कि एक साल में 13 टाइम्स मेंस्ट्रुएशन होगा। अगर 30 डेज या 31 डेज का साइकिल होता तो एक साल में 12 बार होता, पर क्योंकि 28 डेज का साइकिल है तो एक साल में 13 बार मेंस्ट्रुएशन होगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं रिप्रोडक्टिव स्पैन को, दैट इज 32 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ ईयर, so we can get an approximate figure as 416 eggs are being produced by a female in the full reproductive span, ठीक है। मतलब एक फीमेल जो है, जब उसको मेनार्क स्टार्ट होता है और जब तक उसको मेनोपॉज होता है, वो पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी एक फीमेल कम से कम 416 या लेट अस से 420 eggs are being produced by a female. Is that very clear, this particular paragraph now also? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं हिस्टोलॉजी की तरफ, ठीक है। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? व्हेन वी हैव कट इट, तो हमने जब इसको कट किया, ओवरी को कट किया, तो हमने क्या देखा ना, सी द डायग्राम इटसेल्फ। हमने क्या देखा कि जो आउटर रीजन है, हमने इसको नाम दे दिया कॉर्टेक्स, और जो अंदर का रीजन है इसको हमने नाम दे दिया मेडुला। जैसे आपने किडनी में पढ़ा था लास्ट ईयर, आउटर रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड अंदर का रीजन इज कॉल्ड एज मेडुला, ठीक है। अब मेडुला के अंदर ऐसा खाली तो होगा नहीं ना मेडुला, तो मेडुला के अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा है, एंड ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ा है स्ट्रोमा, व्हाट डिड ऑल ऑफ यू? यस। तो आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स, अंदर का रीजन को मेडुला बोलते हैं, और मेडुला के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इतना क्लियर? आउटर रीजन कॉर्टेक्स, अंदर का रीजन मेडुला, और मेडुला के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, सॉरी, जिसको हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रोमा के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? आपको कुछ गोल 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 स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। What are these round round structures you can see? These are the stages of development of eggs. फर्स्ट देखो, फर्स्ट वो राउंड देखो, वो छोटा है, थोड़ा और देखो आगे, थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और आगे, थोड़ा और बड़ा हो गया। तो ये स्ट्रोमा के अंदर आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्स नजर आ रहा है। और ये क्या नजर आ रहा है? दीज आर द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रोमा, ठीक है। अच्छा, तो आप देख यू नो दैट ये जो है द इनर साइड, दैट इज मेडुला, मेडुला इज लाइंड बाय द जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक है। देख सकते हो आप, ये जर्माइनल एपिथेलियम है। तो जर्माइनल एपिथेलियम से ही एक एक सेल सेलेक्ट होता है टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एग, ठीक है। तो जर्माइनल एपिथेलियम से एक एग सेलेक्ट हुआ, इट हैज बिकम इट इज बीन सेड टू बी नाउ प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। प्री मींस इट इज गोइंग टू बिकम द फॉलिकल, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, क्योंकि ये बाद में फॉलिकल बनने वाला है। फिर प्रीमॉर्डियल फॉलिकल थोड़ा और ग्रो हुआ, क्या बना? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल देखो शेप थोड़ा और बड़ा हो गया, उसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल। और बड़ा हो गया, उसको नाम क्या दिया हमने? टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल पूरी तरह से बड़ा हो गया, हमने उसका नाम दिया मैच्योर फॉलिकल, ठीक है।
अच्छा, अब आप क्या देख सकते हो कि ये जो मैच्योर फॉलिकल है उसके आजू बाजू में भी कुछ लेयर्स नजर आ रहे हैं, है ना? हम सबको नजर आ रहे हैं कि नहीं मैच्योर फॉलिकल के आजू बाजू में लेयर्स? यस। तो वो लेयर क्या है? तो वो लेयर होता है, देर आर 2 लेयर्स सराउंडिंग द मैच्योर फॉलिकल. दे आर थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना. ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना. ठीक है. थीका इंटरना जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज थीका इंटरना इज गोइंग टू प्रोड्यूस द ईस्ट्रोजन हार्मोन which controls the secondary sexual character in female. इतना क्लियर है सबको? मतलब थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और ये मैच्योर फॉलिकल, ये सबको मिला के मैं क्या नाम दूंगी? ग्रेफियन फॉलिकल. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अच्छा, अब आप सब देख सकते हो कि ये जो एग है वो एक कोने में है, बीच में नहीं होके एक कोने में है. तो ऐसे एग को हम एसेंट्रिक एग बोलते हैं. ठीक है, जैसे न्यूक्लियस में भी अगर एक कोने में होगा, एक पेरिफेरी में होगा, तो हम उसको इसेंट्रिक न्यूक्लियस बोलते हैं. वैसे एग भी क्योंकि एक कोने में है तो हम इसको इसेंट्रिक एग बोलते हैं. अच्छा, अब इसेंट्रिक एग होने के वजह से, एक कोने में एग जाने के वजह से यहाँ पे काफी स्पेस प्रेजेंट हो गया है. ये स्पेस को हम क्या बोलेंगे? एंट्रम. ठीक है, द स्पेस इज कॉल्ड एज द एंट्रम. And this antrum is filled with the antral fluid. किससे भरा है? Antral fluid बोलो या antral follicle बोलो या liquor follicle भी बोल सकते हो. liquor का मतलब ही होता है fluid part. ठीक है, क्योंकि एंट्रम में फ्लूइड है तो एंट्रल फ्लूइड या एंट्रल फॉलिकल या फिर लिकर फॉलिकल भी बोल सकते हो. इतना सबको क्लियर है? ठीक है. अच्छा, अगेन आप देख सकते हो कि ये जो ऊ साइट है उसके उसके पास में, उसके जस्ट पास में बहुत सारा ऐसा पूरा हिल बना है, सेल्स का पूरा हिल बन गया है. वो सेल के हिल को हम बोलते हैं क्यूम्यूलस ऊफोरस. क्या बोलते हैं? क्यूम्यूलस ऊफोरस. क्यूमुलस ओफोरस का काम क्या है? इट इज जस्ट हैविंग द प्रोटेक्शन फॉर द एग. या फिर ये क्यूमुलस ओफोरस को ही हम जर्म हिल भी बोल सकते हैं. जर्म हिल ऐसा हिल के जैसा बन गया ना, एक पहाड़ी के जैसा बन गया इसके वजह से. ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया है? इतना जो भी मैंने पॉइंट्स बताया. अब हम ये टेक्स्ट बुक से जाते हैं. ठीक है, सो अगेन द सेम थिंग इज बिन रिटन. मेच्योर में क्या रहता है? कॉर्टेक्स रहता है. ठीक है, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है, हैज मल्टी लेयर्ड क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स. ठीक है, अंडरलाइन दैट इट हैज अ क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स. स्ट्रोमा सेल्स एड थीका ओवर द फॉलिकल्स. अच्छा, अभी इन्होंने क्या बताया? मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एग है इसके आजू बाजू में 2 लेयर है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना. पर आपके टेक्स्ट बुक में उसको स्पेसिफाई किया गया है कि ये थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना बनता किसके वजह से है? तो ये स्ट्रोमा जो है ना, ये स्ट्रोमा उसके कारण बनता है थीका. So underline this part. Stroma cells add theca over the follicles. As I've mentioned, there are 2 thecas, 2 layers. Theca का मतलब होता है layer. ठीक है, so into the secondary follicle. Secondary follicle is the mature follicle. Again it will grow. There is a growth of oocyte and the granulosa cell increases in number. ठीक है, जो सेल जो oocyte के आजू बाजू में जो सेल्स है उसी को हम ग्रेन्यूलोसा सेल बोलते हैं, जिसको मैंने अभी क्यूमुलस ऊफोरस नाम दिया. ठीक है, तो जो एग के आजू बाजू में जो भी सेल्स है दे आर कॉल्ड एज अ ग्रेन्यूलोसा सेल. अभी वो देख सकते हो आप, उसका नंबर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और वही क्या बनाएगा? फिर जर्म हिल बनाएगा. ठीक है, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है जिसको मैच्योर फॉलिकल भी बोल सकते हैं, वो ग्रेफियन फॉलिकल अब बदल गया है या फिर ग्रो कर गया है.
क्यों? क्योंकि उसके पास थीका एक्सटर्ना आ गया, थीका इंटरना आ गया, इसके लिए हम उसको ग्रेफियन फॉलिकल बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेफियन फॉलिकल pressed against the thin wall of ovary giving it a blistered appearance. Egg is released from the Graafian follicle. Okay, that is a different thing. इतना क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? Anybody is having doubt till here? Yes or no? No मैम। Egg nest. अच्छा, ये वाला पैराग्राफ I missed. Egg nest क्या है? The germinal epithelium is giving rise to the egg, so it is called as the egg tubes, and that पूरा is called as the egg nest. है ना, पूरा जो अंदर का हिस्सा है, क्योंकि वहां पे एग बनने वाला है, इसी के लिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एग नेस्ट बोल रहे हैं। फिर अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 2 million, फिर 40,000 रिमेन्स एट द प्यूबर्टी, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू विद द डायग्राम इटसेल्फ। अब देखो, ये एग पूरी तरह से तैयार हो गया है। यस, अब ये ग्रेफियन फॉलिकल में क्या है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, इसमें थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है, उसके अंदर क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल है, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, ग्रेफियन मैच्योर फॉलिकल भी बोल सकते हो। ये जो एग है, इसके आजू बाजू में बहुत सारे सेल्स है, जिसको आप ग्रेन्युलोसा सेल भी बोल सकते हो, या फिर क्यूमुलस ऊफोरस भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको जर्म हिल भी बोल सकते हो। ठीक है, सो थीका इंटरना जो है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द थीका इंटरना इज द वन व्हिच प्रोड्यूसेस द ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो ये सारा जो चीजें हैं, ये कब होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ में चलता रहता है। मतलब 1 to 5 day of menstrual cycle, we know that it is a bleeding phase. फिर from 6th day to 13th day of menstrual cycle, ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। from 6th day to 13th day, हाँ, प्रीमोर्डियल से मैच्योर फॉलिकल तक ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। Is that very clear? From 6th day to 13th day, प्रीमोर्डियल से प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, और फिर मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। किसके इन्फ्लुएंस से बनता है? एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस से बनता है। बिकॉज एफएसएच का नाम ही क्या है? फॉलिकल को स्टिम्युलेट करने वाला हार्मोन, which has been secreted by our pituitary gland and which has the effect on our ovary in case of female, similarly testes in case of male. ठीक है, सो अब 13th डे तक एफएसएच के वजह से ये फॉलिकल्स बन गया, ग्रेफियन फॉलिकल बन गया। अब क्या होगा, 14th डे पे पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच हार्मोन रिलीज करेगा, है ना। एलएच हार्मोन के वजह से क्या होगा, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल बना है, जिसके अंदर हमारा एग है, ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा, बर्स्ट होगा, और ये जो एग है वो रिलीज कर दिया जाएगा ऑन डे 14। यू कैन सी ओवर हियर डे 14 इज बीन रिटन। ठीक है, अब ये एग जो रिलीज हुआ है वो कहाँ जाएगा? इट विल बी कैच्ड बाय द फिम्ब्रीज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, है ना। फिम्ब्रीज जो है उसके अंदर ऑस्टिया होता है, उसमें एक ओपनिंग होता है, और ऑस्टिया से अंदर जाएगा, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। ठीक है, अब उसकी स्टोरी डिफरेंट है। लेट अस टॉक अबाउट द ओवरी इटसेल्फ। लेट अस इमेजिन एग इज बीन रिलीज्ड ऑन द 14th डे। ठीक है, Now what will happen to this खाली डब्बा? ये जो पूरा खाली डब्बा है, थीका एक्सटर्ना इंटरना, ये जो पूरा डब्बा था जिसके अंदर एग वाज बीन प्रोटेक्टेड, अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल का जो लेफ्ट ओवर थिंग है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ नेक्स्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और अब ये कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि एग रिलीज हो गया है, तो एग रिलीज हो गया है तो बॉडी क्या इमेजिन करता है? इफ द स्पर्म कम्स, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, मतलब जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट बनेगा तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हिच इज द प्रेगनेंसी हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत पड़ेगी, तो उसका इंतजाम पहले से ही ओवरी में करके रखा रहता है। एग रिलीज होते ही अब किसकी तैयारी शुरू हो गई? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है।
ठीक है। सो जैसे ही ये एग रिलीज होगा, ये एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम राउंड अबाउट ऑन द डे 20, ठीक है, एंड इट विल secrete the hormone. It will act as a temporary endocrine gland to release the progesterone hormone. ठीक है, ये आशा में कि जाइगोट बनेगा। पर समझो पॉपुलेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, ठीक है, तो ये बेचारा कॉर्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑन 28 डे, 28 वाले डे पे या 27 वाले डे पे कॉर्पस ल्यूटियम विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकैन। और जैसे ये एल्बिकैन में बदलेगा, एल्बिकैन इज अ व्हाइट कलर स्ट्रक्चर एंड ल्यूटियम इज अ येलो कलर स्ट्रक्चर। हाँ, ये कलर का भी डिफरेंसेस है। कॉर्पस ल्यूटियम इज अ येलो बॉडी एंड एल्बिकैन इज अ व्हाइट बॉडी, ठीक है। सो जैसे कॉर्पस एल्बिकैन बनेगा, क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। एंड तब तक कौन सा डे पहुंच गया है? 27 या 28 डे। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। Is that very clear, this much part also? Yes, ma'am. Okay. Now, yes. So I think so only this much has been given. Okay. Now, यहाँ पे structure of Graafian follicle भी आपको दिया गया है. That is also very important. As I discussed just now, Graafian follicle has a mature ovarian follicle. क्योंकि वो उस साइड एक कोने में है, इसके लिए हम उसको एसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सारे लेयर्स आपको नजर आ रहे, जोना पेलेसुडा, ये सब लेयर्स, दीज आर द लेयर्स ऑफ द एग, ठीक है। तो जो सेकेंडरी oocyte है, इट इज बीन सराउंडेड बाय अ नॉन सेल्यूलर लेयर कॉल्ड एज अ जोना पेलेसुडा। मतलब एग है, इमेजिन करो एग, एग के ऊपर जोना पेलेसुडा, एंड जोना पेलेसुडा इज सिक्रीटेड बाय द वेटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। सो पहले इतना समझ के लो, फिर आई विल गिव यू कि हाउ द लेयर्स आर। हाँ, करेक्ट। सो अगर ऐसे नहीं बोल के, ये उल्टा सुल्टा नहीं बोल के, इफ आई गो इन अ सीक्वेंस, सो ओवम और द एग इज कवर्ड बाय, लिख लो आप, एग इज कवर्ड बाय वेटेलाइन मेम्ब्रेन। प्लीज इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन। तो नंबर 1 लेयर क्या हो गया? वेटेलाइन मेम्ब्रेन। वेटेलाइन मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कोई भी सेल का, जो सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना बेटा, तो क्योंकि एग भी एक सेल है, तो उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या नाम बोल रहे हैं? वेटेलाइन मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लेयर इज अ वेटेलाइन मेम्ब्रेन विच इज इक्विवेलेंट टू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा होगा बताओ? Zona pellucida. नो नो नो, यस, हाँ, जोना पेलेसुडम। एंड सबसे बाहर क्या होगा? कोरोना रेडिएटा। सो द थर्ड लेयर विल बी कोरोना रेडिएटा। फर्स्ट इज वेटेलाइन मेम्ब्रेन, सेकंड इज जोना पेलेसुडा। जोना पेलेसुडा के बाजू में ब्रैकेट में लिखो, इट इज नॉन सेल्यूलर लेयर, नॉन सेल्यूलर लेयर। और जो सबसे बाहर का रहेगा, जो सबसे बाहर का रहेगा वो कोरोना रेडिएटा है, रेडिएटिंग है, ऐसा वेव्स के जैसा है, रेडिएटिंग लेयर्स है, सो कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। एग के अंदर, वेटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर, एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऊप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला वापस ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो जोना पेलेसुडा है, जोना पेलेसुडा को बनाता कौन है? वेटेलाइन मेम्ब्रेन, जो उसके अंदर है। थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है। थीका इंटरना मैंने आपको बताया ईस्ट्रोजन बनाता है, ठीक है। थीका इंटरना के यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स है, जिसको हम मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा भी बोलते हैं, या फिर ग्रैन्युलोसा सेल भी बोल सकते हो आप। Now from the membrana granulosa cell, they differentiate into discus proligerus and corona radiata cell.
मतलब ये जो कोरोना रेडिएटा है वो किसके कारण बना है? इट इज फॉर्म ड्यू टू द ग्रैन्युलोसा या फिर मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल. सो प्लीज जहां पे आपने कोरोना रेडिएटा लिखा है वहां पे लिखो किससे बनता है ये? फ्रॉम मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा से बनता है. फॉर्म्ड फ्रॉम मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा. और कोरोना रेडिएटा के जस्ट नीचे का लेयर क्या होगा? डिस्कस प्रोलीजेरस. क्यूमुलस यूफोरस जस्ट नाउ डिस्कस. ठीक है, पूरा accumulation of cells है surrounding the granulosa cell. Because the egg is acentric, it is filled, the cavity is present called as the antrum, and this antrum is filled with a fluid called as either the antral fluid या फिर लिकल फॉलिकल या फिर एंट्रल फॉलिकल भी बोल सकते हो आप इसको. तो आप देख सकते हो सारा एग का स्ट्रक्चर विथ ऑल द लेबलिंग्स गिवन बिलो. एक बार ये रीड कर लो. इफ एनीबडी इज हैविंग डाउट यू कैन आस्क मी. Yes, anyone having doubt? किसी को कुछ नहीं समझा अभी भी? नहीं मैम. Okay. So let us move on to the next part. Yes मैम. तो मैं टेक्स्ट बुक ऑफ करती हूँ and I will go back to the PPT. Okay मैम, thank you. हाँ, it's okay बच्चा. Okay. So this is about the process of oogenesis. ठीक है, oogenesis में क्या होता है? This was been asked in this repeaters का एग्जाम होता है ना बेटा. अभी हमने जस्ट पेपर करेक्शन किया उसमें ये oogenesis का प्रोसेस पूछा गया था. For 4 marks it was been asked. So कौन कौन से phases होते हैं? Which are the phases in oogenesis? They are the maturation phase. Then tell me. पहले multiplication phase, growth phase and the maturation phase. मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या देख सकते हो आप? जर्माइनल सेल जो है, यस, या फिर हम जिसको प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं, इसमें माइटोसिस होगा और क्या बनेगा? वो oogonia बनेगा. सॉरी, एंड दैट इज इन द फीटल लाइफ. ठीक है. देन व्हाट विल हैपन? ग्रोथ फेज में क्या होगा? एट प्यूबर्टी. नाउ व्हाट विल, ये ग्रोथ फेज कब होता है? एट प्यूबर्टी. एक oogoneum will grow inside and become the primary oocyte. ठीक है. ग्रोथ फेज में क्या होगा? एट प्यूबर्टी one oogoneum will grow inside size and it will form primary oocyte. नाउ मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? मैच्योरेशन फेज में यही जो प्राइमरी oocyte है, इट विल अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिविजन. ठीक है. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के वजह से दो टाइप का ये बनता है. इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है और अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है. यस, इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन एंड अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. तो इसकी वजह से क्या देखने को आपको मिल रहा है? एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल, क्योंकि एक में साइटोप्लाज्म कम है और एक में साइटोप्लाज्म ज्यादा है. ठीक है. फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा एंड अगेन पोलर बॉडीज विल बी फॉर्म. जिसमें साइटोप्लाज्म कम है, वी आर कॉलिंग इट एज अ पोलर बॉडीज.
एंड जिसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है दैट वी आर कॉलिंग इट एज अ सेकेंडरी oocyte. अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन में प्लीज ये याद रखो, इन सेकेंड मियोटिक डिवीजन में हाँ the oocyte, the secondary oocyte is arrested in metaphase 2. Please note down, this is an important point. The secondary the in meiotic 2 आपने पढ़ा है ना मियोसिस वगैरह, मियोसिस 1 तो पूरा कंप्लीट होगा, पर मियोसिस 2 में भी अभी आपको मालूम है कि प्रोफेज 2 होता है, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 होता है, पर प्रोफेज 2 तो कंप्लीट होता है ये सेकेंडरी oocyte का, पर मेटाफेज 2 में जाके ये रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है. ऐसा क्यों है? बिकॉज इसके पास क्या नहीं है, इसके पास स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाता है. ठीक है, yes there is no spindle fiber. Got it all of you? It has been arrested in the metaphase 2. स्पिंडल फाइबर से अच्छा आप सेंट्रियोल भी बोल सकते हो. ठीक है, so and it has lot of cytoplasm. It has see, this is the thing as I've told you during the explanation also. एग के पास बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है, जो स्पर्म था स्पर्म के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं था, स्पर्म के पास थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, जबकि एग में जानबूझकर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है ताकि एक एग में बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म हो, ताकि जाइगोट को नरिशमेंट अच्छे से मिल सके. गॉट इट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इसके पास मेटाफेज 2 में ये अरेस्टेड है बिकॉज द सेंट्रियोल विल बी गिवन बाय द sperm. You know that the sperm has two centrioles, proximal and distal. So that proximal centriole will be contributed by the sperm so that the egg will complete its metaphase. मतलब meiosis 2 पूरा complete करेगी ये egg. तो sperm के आते ही हाँ sperm जैसे ही centriole देगा, the egg will complete its meiosis 2 and then it will be called as a female pronuclei. और फिर जब ये फीमेल प्रोन्यूक्लियाई होगी तब जाकर फ्यूजन होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, मींस न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है और तब जाकर जाइगोट बनता है. और जाइगोट का इंतजाम पहले से यहाँ पे किया जाता है कि यहाँ पे जानबूझकर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है. ठीक है, क्योंकि पता है कि स्पर्म के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं है. इज दैट वेरी क्लियर? सो एवरीथिंग इन द नेचर इज सो सिस्टमैटिकली डन. ठीक है, all these things we have already discussed. Okay, yes, now a new term which you can see over here is the corpus hemorrhagium. Please note down about this term also, corpus hemorrhagium. Now what is that corpus hemorrhagium? See what I've told you, when the Graafian follicle burst, जब ये Graafian follicle burst होता है तो obviously it's a cell. ठीक है, यहाँ पे blood vessels तो है ही, तो थोड़ा सा क्या होता है, there is a pain. Yes, थोड़ा सा pain, along with that there is a some sort of bleeding. ठीक है, very minute bleeding is there. So that is particular part is called as a corpus hemorrhagium. Hemorrhagium means there is a blood clotting. And you can see in the next step also there is a blood clot seen in the corpus luteum also. Okay, so please note down this corpus hemorrhagium. So how you can say residual follicles are thrown into folds causing bleeding from theca interna. Theca interna se you can see that the bleeding is taking place, which forms the clot in the center called as a corpus hemorrhagium. Again the same thing, just have a look over here. ये पढ़ लो आप पूरा. Degenerated follicles are called as atretic follicles. Corpus luteum I have explained, it is yellow and albicans is white. ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो एंड नोट भी पढ़ो.
किया इतना रीड. Now let us move on to the next part, that are the other reproductive organs. जैसे कि sex organs में आता है oviduct. As I've explained you in the last class itself, oviduct developed from the Mullerian duct of the embryo. Please note down. Oviduct, जिसको हम fallopian tube बोलते हैं, it is developed from the Mullerian duct of the embryo. It conveys the egg from the ovary to the uterus. है ना? It provides environment for fertilization, and it is supported by double fold of peritoneum, which is called as a mesosalpinx. ऊपर वाले में आपने mesotherium पढ़ा था, यहाँ पे mesosalpinx है. Don't get confused. ओविडक्ट के 4 पार्ट होते हैं. Infundibulum, which is surrounded by fimbriae. फिर आता है ampulla and isthmus. Please note down this part, very important. Ampulla के अंदर fertilization होता है. एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. प्लीज नोट डाउन. फिम्ब्रिए के अंदर ऑस्टिया होता है, ओपनिंग होता है, विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम. रिमूवल ऑफ ओविडक्ट एंड टाइंग इट्स एंड इज कॉल्ड एज अ ट्यूबेक्टोमी. यूट्रस क्या शेप होता है? रफली ट्रायंगल इन शेप, दैट इज पायरीफॉर्म होता है, हॉलो है, मस्कुलर है. ठीक है. देन it is meant for nourishing and development of the embryo. Removal of uterus is called as hysterectomy. Hysterectomy. यूट्रस के भी 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम. मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त ये एंडोमेट्रियम ही टूट के गिरता है, इसके वजह से ब्लीडिंग होती है. ठीक है. यूट्रस इज अ साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड फीमेल जेनेटालिया इंक्लूड्स दी. यस, ये सारे मैंने आपको जेनेटालियाज एक्सप्लेन किए थे. इफ यू रिमेम्बर विद अ डायग्राम आल्सो. I've told you to take a screenshot also. I hope you must have taken the screenshot during the normal lectures. I've explained you each and every part in detail. That is a mons pubis, labia majora, minora, hymen, and the clitoris. Okay. So again, I'm not going to repeat all this part. Vagina is a copulatory organ, as well as it is a passage for menstrual flow, as well as a birth canal. During birth canal, its size enlarges to about 10 centimeter in length. Yes, normal delivery होने के लिए the vagina should open till 10 centimeter. Vagina का जो wall है is made up of internal mucosa, muscular layer and outer adventitia. Its mucous membrane is non-keratinized, means protein से नहीं बना है. Keratin is a protein, so non-keratinized stratified squamous epithelium. Please note down. Please note down. It is the mucus is made up of non-keratinized stratified squamous epithelium. No glands in the vagina. जबकि सर्विक्स में सर्वाइकल ग्लैंड होता है और वो ग्लैंड से म्यूकस रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. Again, this point is very, very, very important. Please note down this point. Vagina contain bacteria. Which bacteria? It is a lactobacillus bacteria and lactoneustrog bacteria, which are also called as. Please note down. ये बैक्टीरिया का काम क्या है? It does the fermentation and produces acid. और acid के वजह से क्या होता है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो पाता है. Please note down this part. Write down the name of the bacteria.
Done. So in virgins, it is the vaginal orifice. Orifice का मतलब होता है opening. Is covered by the hymen. Next, let us talk about this vulva. Vulva has labia minora, labia majora. Majora is homologous to scrotal sac of male. Again, important, can be asked. The labial folds, फिर वो minora हो या फिर majora हो, उसके अंदर sebaceous gland होते हैं, means oil glands and sweat glands on both sides. Clitoris is homologous to penis. ठीक है. Then next is about the vestibule. Urethra and vagina opens by separate apertures. मैम आपने स्क्रॉटल सैक का वो क्या बोला था होमोलॉग? ये क्या इधर लिखा है? लेबिया मेजोरा इज इक्विवेलेंट टू scrotal sac of male. लिखा? हाँ मैम, अभी देखा. Yes ma'am. Then a fleshy elevation. Mons pubis को एक और नाम से बोला जाता है mons veneris. It has fat का tissue, that is adipose tissue. You can have a look for all these things. पूरा ये you can take either a screenshot or you can just you can read this particular part. Bartholin glands are similar to the Cowper's gland in the male. Yes, I hope all of you have seen all these things. Yes, ma'am. Have you all noted? Mons pubis is also called as a mons veneris. Now let us talk about this mammary gland, which is also called as a breast, which is meant for feeding the young one. What is mammary gland? It is nothing but the modified sweat gland. Please note down. It is a modified sweat gland which is lying over the pectoral muscles. Each gland is having 15 to 20 lobulated milk glands. These lobulated milk glands are also called as a lactiferous gland. Lactiferous gland. I have explained you about the breast in detail with a diagram also in the class, during the class. So I've told you that the breast has been surrounded by a light brown color structure called as the areolar with a projection in between called as a nipple. Okay. On the surface of areolar, there are many sebaceous glands present called as the areolar glands. Okay. Milk has been released with the influence of prolactin hormone, है ना? Prolactin hormone का भी जब pituitary gland से order आता है तभी milk eject होता है from the lactiferous gland. As well as it is also stimulated by the oxytocin hormone. क्योंकि oxytocin hormone is a birth hormone ना, तो एक बार birth हो गया, oxytocin hormone का भी एक hormone का presence होना blood में भी एक signal है for the mammary gland to release the milk. Hormonal control, just have a look all of you. Very simple. Again, ovary is regulated by the pituitary gonadotrophins. ठीक है?
अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट्स द FSH, जिसके वजह से फॉर्मेशन होता है ग्रेफियन फॉलिकल का, जिसके कारण एस्ट्रोजन बनता है। LH के वजह से ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है, जिसके कारण कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है। Yes, so they with a very nice diagram, this flow table, you can understand this thing. So positive feedback and a negative feedback. So when the things are been done, negative feedback से stop किया जाता है. Yes. Have you seen this much, all of you? So now time is also over. I think we should stop over here. Next lecture में we will be discussing about the menstrual cycle. So please learn and keep 12th का part अपना जो भी